بلاول بھٹو نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے بیان دیا ہے کہ ان کیسز سے میرا کوئی تعلق نہیں، پارک لین کمپنی قائم ہوئی تو میری عمر صرف 1 سال تھی، کبھی کرپشن کی حمایت نہیں کی۔ آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پیشی کے بعد نیب آفس سے باہر آ چکے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پرجوش جالے ان کا استقبال کرنے موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نفیسہ شاہ، مصطفیٰ نواز کھوکر، قمر زمان کائرہ، فاروق اچنائک وہاں پر موجود ہیں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پیشی کے بعد نیب آفس سے باہر آ چکے ہیں اور اس پیشی سے پہلے آصف علی زرداری کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے 10 روز کی حفاظتی ضمانت بھی لی گئی تھی 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور جب اس بابت سوال کیا گیا ایک صحافی سے کل آصف علی زرداری سے، تو انہوں نے صرف ایک کہے پر اکتفا کیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پیشی کے بعد نیب آفس سے باہر آ چکے ہیں، اور یہ مناظر بھی آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وہاں پر موجود ہیں، اور شاید قانون نافذ کرنے والے ادارے، جیسا کہ صبح ہماری اپنے رپورٹر سے بھی بات ہو رہی تھی، ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہیں امید نہیں تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنا بڑا پاور شو کرے گی۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وہاں پر پہنچے، اور یہ مناظر آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نیب آفس کے باہر موجود ہیں، اور صبح ان کارکنوں کا باقاعدہ طور پر تصادم بھی ہوا پولیس اہلکاروں کے ساتھ، جس میں اطلاعات کے مطابق 6 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی ایک پولیس کانسٹیبل کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ اس وقت اطلاعات کے مطابق آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پیشی کے بعد نیب آفس سے باہر آ چکے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمیں مزید اپڈیٹس موصول ہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پارک لین کمپنی سے کسی بھی قسم کے تعلق کو ڈینائی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ کمپنی 1989 میں قائم کی گئی تھی تو ان کی عمر صرف 1 سال تھی، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے انہیں دوبارہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے یہ بیان دیا کہ ان کیسز سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد اویس سے۔ اویس، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت نیب آفس کے باہر آ چکے ہیں۔ 40 سے 50 منٹ تک کی تحقیقات ان سے کی گئی تفتیشی ٹیم کے سامنے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری رہے، اور اب وہ نیب آفس سے باہر آ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا تو بیان آلریڈی سامنے آ چکا تھا کہ انہوں نے تمام تر جو الزامات تھے ان کی تردید کی اور کہا ہے کہ ان کا کرپشن کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب پارک لینڈ کمپنی 1989 میں قائم کی گئی تو اس وقت ان کی عمر 1 سال تھی۔ اب جیسے ہی سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیسے ہی نیب آفس کے باہر آئے ہیں تو کارکنان کی جانب سے ایک بار پھر سے ان کی گاڑی کو گھیر لیا گیا ہے۔ کارکنان بیتاب ہیں، ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہیں، جبکہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہے۔ کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب یہاں پر نیب آفس پہنچے تھے تو اس وقت گرفتاریاں بھی کی گئی تھی، جن کی جانب سے کارکنان کی جانب سے گاڑیاں روک لی گئی تھی۔ نیب آفس کے باہر مین گیٹ پر تقریباً 30 منٹ تک سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو انتظار کرنا پڑا، اس کے بعد انہیں اندر جانے دیا گیا۔ اب بھی کارکنان کی جانب سے بڑی تعداد میں یہاں پر کارکنان موجود ہیں، اور انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی گاڑیوں کو گھیر رکھا ہے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے کارکنان کو ہٹایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، تاکہ سیکورٹی میجرز کو سامنے رکھتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو یہاں سے روانہ کیا جا سکے۔ لیکن کارکنان کا ولحانہ جو جوش ہے، جذبہ ہے، وہ قابل دید ہے، بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حق میں اس وقت نعرے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ پولیس بھی اور کارکنان کا جوش اس قدر ہے کہ پولیس بھی کارکنان کو پیچھے ہٹانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔
इस्तकबाल किया जा रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त अगर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सके तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गाड़ी और बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी, जिसमें उनकी बहन आसमा भुट्टो भी मौजूद है, उनकी गाड़ियां नैब ऑफिस से बाहर आ चुकी हैं और ये गाड़ियां जो है एम्बेसी रोड की तरफ जा रही हैं। एम्बेसी रोड से वापस इनको रवाना कर दिया गया है क्योंकि दीगर जो रास्ते थे वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। एम्बेसी रोड से डी चौक की तरफ इनको रवाना किया जाएगा और इस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी रवाना हो चुके हैं। यहाँ से नैब टीम के सामने पेश होने के बाद 40 से 45 मिनट तक की तफ्तीश की गई है। 11 अफसरान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जबकि 5 अफसरान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से तहकीकात की है और तहकीकात का जो दौरानिया था वो 35 से 40 मिनट के दौरान था और इस दौरान तमाम तर जो गुफ्तगू हुई अफसरान और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया है। इससे कब जब सब यहाँ पर पहुंचे थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, तो उनके साथ आने वाले जो क़यादत थी उनको मेन हॉल में बिठा दिया गया था। जो लीगल टीम थी जिसमें फारूक नाइक भी शामिल थे, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, उनको बाहर मेन हॉल में बिठा दिया गया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को से सवालात से पहले चाय और बिस्किट भी पेश किए गए नैब की जानिब से। उसके बाद ये तहकीकात का सवाल जवाब का अमल शुरू हुआ। 100 सवालों पर मुश्तमिल 2 सवालनामे तैयार किए गए थे जिसे अलग अलग कमरे में बैठाकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से 11 अफसरान ने सवालात के जवाबात लिए, जबकि दूसरे कमरे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से 5 अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम ने सवालों के जवाबात लिए। 100 सवालों पर मुश्तमिल ये सवालात थे जो कि पाक लैंड कंपनी से मुताल्लिक थे, वो लिए गए और 40 से 45 मिनट तक की ये जो तफ्तीश थी ये जारी रही। इस तफ्तीश के दौरान तमाम तर चीजों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। उसके बाद अब से कुछ देर कब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नैब ऑफिस से रवाना हो चुके हैं। जी अच्छा उवैस, ये भी बताइएगा कि बाहर आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मजीद कुछ बताया गया मीडिया के नुमाइंदों को अंदर की प्रोसीडिंग्स के बारे में? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जबकि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ पर आए थे उनकी जानिब से काफी इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा था, लेकिन साथ साथ गुस्से का इजहार भी किया जा रहा था कि उनकी पार्टी क़यादत को आज यहाँ पर तलब किया गया है। मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए जिसमें नैब पर भी तनकीद की गई, गवर्नमेंट पर भी तनकीद की गई, लेकिन जो हमने देखा कि जब सुबह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि वो बिल्कुल नर्वस या कंफ्यूज नहीं है। उन्होंने बाकायदा मीडिया की जानिब देखकर हाथ भी हिलाया, वेव का इशारा किया, अपने कारकुनान को हौसला भी दिया, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जैसे ही नैब ऑफिस पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया को नजरअंदाज किया, कारकुनान को नजरअंदाज किया और नैब ऑफिस चले गए, रवाना हो गए। लेकिन जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके साथ उनकी गाड़ी में शरीक थी उनकी बहन आसमा भुट्टो, दोनों जब गाड़ी से बाहर निकले तो मीडिया की जानिब देखकर उन्होंने वेव किया। बॉडी लैंग्वेज से वो बिल्कुल मुतमईन नजर आ रहे थे, कोई डर कोई खौफ उनके चेहरे पर नहीं था। गो के आया वो पहली मर्तबा पेश होने जा रहे हैं, इस हवाले से उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बाकायदा तौर पर वो रिलैक्स मूड में थे और बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लग रहा था कि वो परेशान हैं। जी अच्छा उवैस, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान जो सब तसादुम हुआ था उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप वहां पर मौजूद थी उसने क्या पुलिस से किस किस्म की बात की ताकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जब बाहर आए किसी किस्म की दोबारा बदमज़गी ना हो? जी बिल्कुल, सुबह हमने देखा जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचे तो कारकुनान की जानिब से उनकी गाड़ियां रोकी गई। उसके बायस क्योंकि उनके आने से कब्ल कारकुनान पुलिस हसार तोड़कर जो कि नादरा चौक में है नैब के गेट तक पहुंच चुके थे। गेट खाली कराने के लिए पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया था, लेकिन हमने देखा कि उस दौरान गिरफ्तारियां भी अमल में आई। 28 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। इस सारे तजादुम में 6 पुलिस
एहलकार भी जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद कारकुनान को गेट से हटाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। तमाम पुलिस ने घुटने टेक दिए। उसके बाद एसपी और सिटी सदर जो हैं सदर एसी उनकी जानिब से मुस्तफा नवाज खोकर के साथ मुज़ाकरात किए गए। मुस्तफा नवाज खोकर ने ये शर्त आयद की थी कि उनके गिरफ्तार जो 28 कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद वो मेन गेट खाली कर देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब ऑफिस जाने की इजाजत दे देंगे, रास्ता दे देंगे। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि इस्लामाबाद के 2 थानों जिसमें अपारा और सेक्रेटेरिएट शामिल है, वहां से 18 के करीब कारकुनान को रिहा कर दिया गया। जब ये खबर मुस्तफा नवाज खोकर तक पहुंची तो उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, जिनकी जानिब से कारकुनान ने गाड़ियों के आगे से हट गए और अंदर जाने की इजाजत दी गई। अब तक 10 के करीब जो कारकुनान है वो कोसार थाने में कैद है, उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया। उसके बाद कारकुनान क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन जब आपसे कुछ देर कब पेशी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब बाहर आए तो कारकुनान की जानिब से धक्कम पहल तो नहीं की गई, क्योंकि पुलिस की ऑलरेडी यहाँ पर भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। लेकिन उनकी एक झलक देखने के लिए गाड़ियों के गिर्द कारकुनान जमा हो चुके थे, जोश और जज्बा था। लेकिन उसके बावजूद जो गाड़ियां थी वो काफिला था, वो पूरे प्रोटोकॉल में काफिला था। 6 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफिला था जो यहाँ से रवाना हो गया है। लेकिन अब से कुछ देर कब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मीडिया नुमाइंदगार के दरमियान तजादम हुआ है, जिसमें 2 मीडिया के नुमाइंदगान को जख्मी किया गया है। उसके बावजूद पुलिस साइड पर खड़ी तमाशा देखती रही, बीच बचाव के लिए नहीं आई, जिसके बाद 2 मीडिया नुमाइंदगान जख्मी हुए। जबकि कारकुनान की जानिब से अब भी यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से हसार तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन कारकुनान को आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान जेलों को पुलिस नैब कोर्ट आने से नहीं रोक सकी, नैब के गेट तक आने तक नहीं रोक सकी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, ओवैस के पुलिस के दरमियान और पीपल्स पार्टी के जियालों के दरमियान सुबह जो तसादुम हुआ उसकी वजह समझ में आती है, लेकिन मीडिया के लोगों का क्या कसूर था कि पीपल्स पार्टी के जियाले उन पर पल पड़े? जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कब जब पीपल्स पार्टी के कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे तो कुछ हिसास इदारों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, जिसकी कवरेज मीडिया नुमाइंदगान कर रहे थे, जिसके बायस जो जाले जो के नारेबाजी कर रहे थे हिसास इदारों के खिलाफ वो फट पड़े और उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान कवरेज करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस सारे अमल के दौरान पुलिस साइड पर खड़ी तमाशा देखती रही, आगे नहीं बढ़ी और ना ही किसी कारकुन को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद मीडिया नुमाइंदगान पार्टी क्यादत के जो रहनुमा है, लोकल जो मुकामी क्यादत है, वो बीच में आई, उन्होंने बीच बचाव करवाया। लेकिन उसके बावजूद जो जियाले हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका जोश और जज्बा जो था वो काबिल दीद है कि आज वो किस तरह यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि पुलिस की जानिब से 3 हज़ार आज कायम किए गए थे। क्योंकि गुज़श्ता रोज नैब हुकाम की जानिब से कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खत भी लिखा गया था, जिसमें ये पहले से वाज़ेह कर दिया गया था कि बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर आ सकते हैं, उनकी आमद मुतवक्के है। इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। इस हवाले से पुलिस की जानिब से 3 एतराफ में रास्ते बंद कर दिए गए थे नैब की जानिब आने वाले, लेकिन जो नादरा चौक वाला हसार है वहां से जो जाले थे उन्होंने वो पुलिस का हसार तोड़ा और नैब के जो गेट है, नैब हेडक्वार्टर है, वहां तक पहुंचे। ना सिर्फ वहां तक पहुंचे बल्कि अपने ही चेयरमैन और शरीक चेयरमैन की गाड़ियों को रोका और उनको अंदर जाने की इजाजत या रास्ता नहीं दे रहे थे। उसके बाद पुलिस, जिली इंतजामिया और जो मुकामी क्यादत थी मुस्तफा नवाज खोकर के साथ पुलिस की मुज़ाकरात हुए। उस मुज़ाकरात में ये शर्त रखी गई थी कि जितने भी उनके कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाएगा तो ही वो रास्ता साफ करेंगे, रास्ते से हटेंगे और गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत देंगे। इस दौरान हमने एक और चीज देखी कि मुस्तफा नवाज खोकर जो सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से पुलिस पर हाथ भी उठाया गया। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी करते हुए हमने देखा। लेकिन जो कारकुनान थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी क़यादत के इशारे का इंतजार कर रहे थे। पार्टी क़यादत जो भी इशारा करती वो उस पर अमल करते थे। इसके अलावा एक और चीज आपको बताता चलूं कि मुस्तफा नवाज खोकर जो के नादरा चौक गए, वहां से उन्होंने
कारकुनान को साथ लिया, पुलिस हसार तोड़ा और नैब कोर्ट पहुंचे, नैब मेन गेट नैब हेडक्वार्टर पहुंचे। दूसरी बार दोबारा जब उन्होंने ये कोशिश की दोबारा से कारकुनान को दोबारा आगे लाने की, हसार तोड़ने की, उसके बायस गिरफ्तारियां शुरू की गई थी, जब जिसके बायस 28 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से अब तक जो इतलात हैं कि 18 के करीब 2 थानों में जो कारकुनान थे, अपारा और थाना सेक्रेटेरिएट में, उनको रिहा कर दिया गया है, जबकि 10 के करीब जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो सेक्रेटेरिएट थाने में अभी भी मौजूद हैं। जी अच्छा उवैस, ये भी बताइएगा कि जो 10 पीपल्स पार्टी के कारकुन थाना कोसार में मौजूद हैं, क्या उन पर किसी किस्म का मुकदमा भी दर्ज किया गया है? और अब जबकि वहां से बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी वापस रवाना हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के जाले भी वापस जाने लगे हैं? जी बिल्कुल, जो 10 कारकुन थाना सेक्रेटेरिएट में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर जब ये मुआहदा हुआ था, मुज़ाकरात हुए थे, तो मुस्तफा नवाज खोकर ने ये पहली शर्त रखी थी कि तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए, उसके बाद ही वो चेयरमैन और शरीक चेयरमैन की गाड़ी को अंदर जाने के लिए रास्ता देंगे। तो उस बेस पर जो कारकुनान थे 18 के करीब उनको रिहा कर दिया गया था। तो अब उम्मीद है कि बाकी 10 कारकुनान को भी रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जो आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो तो इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन कारकुनान ताहल यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान अभी यहाँ से गए नहीं है, वापस नहीं गए, लेकिन उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नैब हेडक्वार्टर से 40 से 45 मिनट की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। जी अच्छा उवैस, ये भी बताइएगा कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी से अंदर तफ्तीश की गई, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्क लेन कंपनी से किसी भी किस्म के जो इजहार ताल्लुक है उसे डिनाई किया? जी बिल्कुल, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी से आज जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने तमाम तर जो उन पर इल्जाम लगाए गए थे नैब की जानिब से, उन्होंने उनकी तरदीद की है। 5 अफसरान पर ये मुश्तमिल तहकीकाती टीम थी जो दूसरे कमरे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल जवाब कर रही थी। उनसे पूछा गया पार्क लाइन कंपनी से मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि 1989 में जब ये कंपनी कराची में बनाई गई इकबाल मेमन के जरिए, तब उनकी उम्र 1 साल थी और उसके बाद उनका इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था। करप्शन के कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी करप्शन की उन्होंने आज तक हमायत नहीं की। नैब को चाहिए कि मुकम्मल तहकीकात करे और जो सच है, जो हकायक हैं, वो आवाम के सामने लाए और उम्मीद जाहिर करते हैं कि आइंदा नैब उन्हें तलब नहीं करेगी। लेकिन नैब की जानिब से अभी ताहाल ये हतमी फैसला नहीं किया गया कि आइंदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दोबारा तलब करना है या नहीं। इसके को पता चलूं कि आज जो 16 अफसरान थे और 16 अफसरान पर मुश्तमिल 2 तहकीकाती टीमें थी, उसमें गुल आफरीदी, मोहसिन अली खान, महबूब यूनुस खान, अहमद बोला और वासिक हुसैन शामिल थे, जो अफसरान थे जो इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आप हमारे साथ ही रहेगा, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आज एक अहम पेशी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी आज पेश हुए नैब के सामने। 35-40 मिनट में 100 से ज्यादा सवालात, क्या उन सबके जवाब देना मुमकिन भी था? देखें वैसे ये पहला मरला है, पहली पेशी है जब से ये केस मुंतकिल हुआ है नैब को। और इस नैब की पेशी में जिस तरह बिहेव किया गया, जिस तरह एहतजाज हुआ, जिस तरह ये पेशी हुई है, इससे लग रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है आगे आने वाले दिनों में और मजीद बढ़ेगा। अब दूसरी तरफ आते हैं जो आपने सवाल किया कि नैब की पेशी जो है वो किस तरह हुई। आसिफ अली जरदारी जब पेश हुए तो हमारे जरदारी ने ये बताया है कि उनसे मनी ट्रेल के बारे में पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आया और किस तरह जो है वो कमाया गया और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा वेस्ट नैब की टीम ने यह भी उनसे दरियाफ्त किया कि जिन के अकाउंट्स में ये पैसे आए थे और जिन लोगों के ये अकाउंट्स हैं उनसे आसिफ अली जरदारी का क्या तल्लुक है। लिंक साबित करने की कोशिश की नैब ने और आसिफ अली जरदारी से ये पूछा गया कि आपका इन अफराद के
کیا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئے, کس شخص نے یہ یہاں پہ پیسے منتقل کیے, ان سے آپ کا کیا تعلق ہے. اس پہ زرداری نے جواب دیا کہ جو بھی کوشچن ہوں گے انہوں نے مختلف سوالات کے جواب بھی دیے, زرداری نے بتایا ہے, اور پھر انہوں نے مہلت بھی مانگی ہے اور 1 ہفتے کی انہیں مہلت دی گئی ہے. دوبارہ جو سوال نامہ دیا گیا ہے, تقریباً 50 سے زائد سوال ہیں وہاں پہ جو انہیں فراہم کیے گے تحریری طور پر. بہت بہت شکریہ جاوید بلوچ آپ کا. اور یہاں وقت تو ایک بریک کا, لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس. نیب آفس میں پیش ہوئے اپنے والد آصف علی زرداری کے ہمراہ, جہاں انہوں نے نیب کے سوالوں کے جواب دیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جارحانہ سیاست کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں. اس وقت ان کی جانب سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وہاں پر موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کو اپنے درمیان میں پا کر کارکن نہایت پرجوش ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج ایک پاور شو کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور کو چیئرمین آصف علی زرداری کو آج نیب آفس میں طلب کیا گیا تھا. بلاول بھٹو نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب پارک لین کمپنی بنائی گئی تو 1989 میں وہ صرف 1 سال کے تھے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کسی بھی قسم کی کرپشن سے انکار کیا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ نیب کی جانب سے انہیں دوبارہ نہیں بلایا جائے گا. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت بات کرنے لگے ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کر نعرے بازی بھی کی. ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اور کارکن اس وقت جمع ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جیالے بلاول بھٹو زرداری کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے عملی طور پر جارحانہ سیاست کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑی تعداد میں کارکن وہاں پر جمع ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کے حق میں, آصف علی زرداری کے حق میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے بلند کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, جس میں نفیسہ شاہ شامل ہیں, قمر زمان قاہرہ, فاروق ایچ نائک, مصطفیٰ نواز کھوکر شامل ہیں, وہ سب بھی موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ. جبکہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ ہی لمحے کے بعد بلاول بھٹو زرداری میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات کریں گے. ایک بہت بڑی تعداد میں صحافی بھی اس ایونٹ کی کوریج کے لیے پہنچے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بھی دیکھی جا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے آج جس طرح اظہار یکجہتی کیا گیا بلاول بھٹو کے ساتھ, آصف علی زرداری کے ساتھ, بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے 30 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا پیپلز پارٹی کے, اور انہیں تھانہ کوثر میں بند کر دیا گیا, جس میں سے 18 کارکنوں کو رہا کر دیا گیا, اور 10 سے 12 لوگ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے گرفتار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت اپنے کارکنوں سے بات کر رہے ہیں. پہلا نیب پیشی پہ آپ سب میرے ساتھ تھے, جیسے کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتے تھے, جیسے کہ آپ صدر زرداری کے ساتھ جاتے تھے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جاتے تھے. آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جانثار کارکن آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. ساتھیوں, ہم سب نیب کا کردار سے واقف ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا. نیب نے 2002 کے الیکشنز میں آپ کا جیتی ہوئی الیکشن میں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट को चोरी करने के लिए पीपल्स पार्टी की पैरासाइट ग्रुप बनाया, मुशर्रफ का सिलेक्टेड हुकूमत को बैठाया और मुशर्रफ का सिलेक्टेड ऑपोजिशन का लीडर भी बैठाया। ये नायब का माजी है और ये हमारा गलती है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इस काला कानून में कोई तब्दीली नहीं ले आए, इस डिक्टेटर की कानून में हमने कोई तब्दीली नहीं ले आए। ये हमारा कमजोरी था, ये हमारा गलती था। इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम अपना आइन से, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन से हर आमिर का डाला हुआ काला कानून निकालेंगे। आज जिस केस में मुझे तलब किया गया, उस कंपनी का शेयर होल्डर मैं तब बना जब मैं 1 साल से कम था। ये लोग मेरा एहतसाब 1 साल से कम उम्र से शुरू कर रहे हैं। बेशुमार बेशुमार बिलावल तेरा दुश्मन, बेगैरत बिलावल तेरा दुश्मन, बिलावल तेरा दुश्मन, बिलावल तेरा दुश्मन। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। नेशनल असेंबली में तकरीर करते हैं तो फिर JIT से या नैब से या किसी कठपुतली इदारों से हमें नोटिस मिलता है, मगर हम इन नोटिस से नहीं डरते। हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जानिसार कठपुतली हुकूमत को लड़काते रहेंगे। हम कलदम तंजीमों के खिलाफ अपने आवाज बुलंद करते रहेंगे। हम मुतालबा करते रहेंगे कि उन वजीर जो दहशतगर्दों के साथ काम करते थे, जो कलदम तंजीमों के साथ काम करते थे, जो दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स चलाते थे, जो मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर कलदम तंजीमों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े थे, और 3 वजीरों को फौरन वफाकी कैबिनेट से फारिग किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अपने कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। उसके खिलाफ अपना आवाज उठा रहा हूं। जो ह्यूमन राइट्स की क्राइसिस है, हम उसके खिलाफ अपने आवाज उठा रहे हैं। जो मुआशी दहशतगर्दी और मुआशी कत्ल हो रहा है, जो किसानों के साथ मुआशी कत्ल हो रहा है, जो मजदूरों के साथ मुआशी कत्ल हो रहा है, जो नौजवानों बुजुर्गों के साथ मुआशी कत्ल हो रहा है, हम उसके खिलाफ अपना आवाज उठाते रहेंगे। हम इनके धमकियों से नहीं डरते। हमने अयूबी आमरीत का मुकाबला किया, हमने जिया आमरीत का मुकाबला किया, हमने मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला किया। हम इस कठपुतली हुकूमत का भी मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब पूरा करेंगे। हम बीबी का वादा निभाएंगे और पाकिस्तान बचाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपने अपने पार्टी की आदत किया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि नैब का इदारा एक डिक्टेटर के दौर में बनाया गया था। हम सब जानते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। 2008 से 2013 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हमसे गलती हुई कि हमने नैब के इदारे को ख़त्म नहीं किया, लेकिन आइंदा हम इस गलती को दुरुस्त करेंगे। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।